અને આ વાત ઉપર આપણા આખા ભારત દેશને ખૂબ જ ગૌરવ છે. વાહ, રાફેલ ઉડાવનાર પહેલા પાયલટે બન્યા છે. કેટલી મજાની વાત. અને ઉપરથી કંઈ ખરીદ જાણવાનું જૂનું પણ નહીં. જી, ગૌરવ તો હોય જ ને, પણ મને એક પ્રશ્ન થઈ રહ્યો છે કે આ બંનેમાં શું કંઈક અલગ હશે કે માત્ર ફરક એ પહેરવેશનો જ હશે? લાગે તો એવું જ છે. કેમ કે એ પણ આવા જ જૂનું છે અને માતૃભૂમિના રક્ષણ માટે એ હાથમાં તલવાર લઈ યુદ્ધ ક્ષેત્રમાં દુશ્મનોને પરાજય કરી દીધા હતા. કેટલી મસ્ત ફિલિંગ આવે, નહીં? મારે પણ કંઈક આવું બનવું છે, જેના થકી હું મારા પર તો ગર્વ કરી જ શકું, પણ મારો દેશ અને સમાજ પણ મારા પર ગર્વ કરી શકે એવું કંઈક. પણ શિવાની, એમને આટલી નાની ઉંમરે આવા વિચાર કેવી રીતે આવ્યા હશે? કોણે શીખવ્યું હશે એમને આવું? એમના સંસ્કારો. રાણી લક્ષ્મીબાઈ ભલે દુશ્મનોની સામે તલવાર કાઢતા હોય, પણ એમનામાં એક ઉદારતા પણ હતી. જેમ કે નાનપણથી જ મારી મમ્મીએ મને ગાય માતાને રોટલી ખવડાવવાનું શીખવાડ્યું છે. ને હવે જો કદાચ એકાદ દિવસ રહી જાય કે હું ભૂલી જાઉં કે કોઈ કારણોસર ના જવાય, તો મારા મને શાંતિ નથી મળતી. સાચી વાત છે. જેમ કે આપણે રસ્તામાં જતા હોઈએ અને આપણને જો આપણું કોઈ ધાર્મિક સ્થળ દેખાઈ જાય તો સ્વાભાવિક રીતે જ આપણું મસ્તક ઝૂકી જાય છે. અને આવી જ શ્રદ્ધા, આવી જ આસ્થા આપણને આપણા ભારત દેશ પર છે. અને આ બધું જ આપણને શીખવા મળ્યું છે, તો એ આપણા સંસ્કાર અને તેની સાથે રહેલી સંસ્કૃતિ દ્વારા શીખવા મળ્યું છે. સાચી વાત છે. સંસ્કાર અને સંસ્કૃતિ એ બંને એકબીજાના પૂરક છે અને આપણા જીવન સાથે પણ તે જોડાયેલા છે. આજે સંસ્કારોથી લઈને સંસ્કૃતિની આ વૈજ્ઞાનિક ક્રિયામાં વચ્ચે અંતરમાં બધા હું ગુજરાત પ્રાંત તરુણી પ્રમુખ મેમ, આરતી પ્રજાપતિને અવાજ નથી આવતો. શિવાની બેન નો અવાજ નથી આવતો. રાષ્ટ્રવાદી ઉદ્બોધન માટે ગુજરાત પ્રાંત તરુણ પ્રમુખ આરતી પ્રજાપતિને વિનંતી કરીશ. શિવાની મેમ નો અવાજ ક્લિયર જ નથી. કશો વાંધો નહીં, મારો તો છે ને. હા હા, વાંધો નહીં. હા. સારું, તો હું બોલું. ઓકે. માનનીય રાજશ્રીબેન ને વંદન. મને નથી ખબર ચંદા દીદી જોડાયા છે કે નહીં, શિવાનીબેન કે કોઈ કહી શકશે? જી નમસ્તે. ચંદાબેન કે નીતાબેન છે? જી નમસ્કાર. નમસ્તે સર્વ તરુણીઓને. તરુણી એટલે હું કોઈ એજ ગ્રુપને લઈને નથી કહેતી કે તરુણી. મારા માટે જે અહીં ઉપસ્થિત છે એ એજ ગ્રુપ હોય કે પછી કોઈ વયથી હોય કે દિલથી, આજે જો તમે અહીં છો તો તમે તરુણી છો. આપણે જીવનમાં 3 અવસ્થાઓ વિશે જાણીએ છીએ: બાલ્ય અવસ્થા, યુવા અવસ્થા અને વૃદ્ધાવસ્થા. બાલ્ય અવસ્થા કે જ્યારે આપણામાં સૌથી વધારે ઉર્જા રહેલી છે. આપણે જાણીએ છીએ કે ત્યારે આપણી અંદર એટલું બધું કે છોકરાઓ રમ્યા કરે, પણ એમને ખબર ના હોય કે એને કઈ બાજુ લઈ જવું, એમની ઉર્જા કઈ બાજુ લઈ જવી એ ખબર ના પડે, એમને દિશા ના મળે. તે જ વખતે
વૃદ્ધાવસ્થા કે જ્યારે આપણે આપણા જીવનનો સૌથી વધારે મહત્વનો જીવનનો બહુ જ બધો સમય જીવી ચૂક્યા હોઈએ છીએ, અથવા તો એમ કહીએ કે એટલા બધી આપણે આપણા જીવનની મોટા ભાગની મુશ્કેલીઓમાંથી પસાર થઈ ચૂક્યા હોઈએ છીએ. આપણામાં એ પ્રૌઢતા અથવા એવું કહી શકાય કે આપણામાં એ સમજ આવી ચૂકી હોય છે. પણ શું આપણામાં એ વખત એટલી ઉર્જા હોય છે? નહીં ને. એ વખત આપણે આટલી દોડાદોડી ના કરી શકીએ જેટલી આપણે નાના હોઈએ ત્યારે કરીએ. તો એ વખતમાં અત્યારે સૌથી એના વધી કોણ? યુવા અવસ્થા, તરુણ અવસ્થા. અહીં કેટલા બધા લોકો એવા હશે કે જેમને પહેલી વાર તરુણ અવસ્થા અથવા તરુણી એવું નામ બી પહેલી વાર સાંભળ્યું હશે. તો તરુણ અવસ્થા કે જ્યારે આપણી પાસે ઉર્જા, શક્તિ સૌથી વધારે હોય અને સાથે સાથે આપણામાં એ શક્તિને ક્યાં વાળવી, કઈ દિશામાં લઈ જવી, એને કઈ ડાયરેક્શન આપવી, એ પણ આપણા માટે એ સમજ એ પણ આપણામાં એટલી જ હોય છે. એટલે જ ખબર કોઈ પણ એક બહુ સરસ કહેવત છે કે કોઈ પણ દેશ માટે એનું યુવા ધન સૌથી મહત્વનું ધન છે, જેનો કોઈ વિકલ્પ નથી. આપણે પૈસો હોય, સોનું હોય, ચાંદી હોય તો આપણે એને ફરીથી આપણી પાસે ના હોય તો કોઈક પાસે ઉછીનું લાવી શકીએ. પણ શું આપણે યુવા ધનને કોઈ દેશ આપે છે? કોઈ એવું કહે છે કે મારા યુવાનોને તમે લઈ જાઓ? મોદીજી શા માટે પ્રયત્ન કરે છે કે આપણા જ ત્યાં આપણે એવું કેમ એક માહોલ ઊભું ના કરીએ કે આજના યુવાનોને કે જેમને વિદેશ જવાની બહુ ઘેલછા થાય છે કે આપણે બહાર જઈએ અથવા તો બહારના લોકોને આપણને લોકોમાં ક્રેઝ થતો જાય છે આજે કે આપણે બહાર જઈએ. તો એ ક્રેઝ થાય એની જગ્યાએ આપણને આપણા જ દેશ માટે અભિમાન થાય, આપણે આપણા જ દેશને જાણીએ, જેથી આપણું યુવા ધન આપણા દેશમાં રહે, આપણા દેશ માટે કામ કરે. તમે બધા અહીં છો એનો મતલબ જ એ છે કે તમારે દેશ માટે કંઈક કરવું છે. પણ કેવી રીતે થાય ને બધાને સવાલ? આપણે આ લોકડાઉનમાં બધાએ જ કંઈક ના કંઈક આપણી અંદરના એક નવા મેને જોયો. લોકડાઉનમાં કોઈકે ચિત્ર કર્યું, કોઈકે ગીત ગાયા અથવા તો કોઈકે કોફી બનાવી, કોઈકે પેઇન્ટિંગ કર્યું, કંઈક ના કંઈક તો કર્યું ને બધાએ. તો આપણે આપણા અંદરની એક સ્કિલ કે કંઈક પણ આપણા અંદરની નવી ઉર્જાને જાણી. તો જેમ 21મી સદીમાં આપણે રહીએ છીએ, તો 21મી સદીમાં કહેવાય ને કે તરુણીઓમાં એટલી બધી ઉર્જા છે ને કે એ એક જ વસ્તુમાં અટકી રહેવી નથી. આપણે સરહદ પર જઈને લડીએ ના લડીએ એનો મતલબ નથી, પણ આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં એવું તો શું કરીએ, એવું થોડોક કેવો બદલાવ લાવીએ કે જેથી આપણે આપણા દેશને ઉપયોગી થઈએ. નાની વસ્તુ, એક શેમ્પુ, એક ટૂથપેસ્ટ, એક ટૂથબ્રશ, સાબુ, આ આપણે સ્વદેશી ના વાપરી શકીએ? આપણે આપણા સોસાયટીમાં રહેતા બાળકોને ભણાવી શકીએ, આપણે આસપાસ રહેતા વૃદ્ધોને થોડી મદદ ના કરી શકીએ? આજે કોરોના જેવા મહામારીમાં જ્યારે સૌથી વધારે સંકટ વૃદ્ધો પર છે, તો શું આપણે એમને મદદ કરીને આપણે સમાજની, આપણા આસપાસની આપણા સમાજને મદદરૂપ ના થઈ શકીએ? તો આજ આપણા જીવનમાં આ નાના જે બદલાવ છે ને, એ જ બદલાવ આપણે કેવી રીતે કરીએ અને કઈ દિશામાં કરીએ ને, એ વિચારોને લઈને આ અમે ઈ દ્રષ્ટિકોણ
દ્રષ્ટિકોણ કે જે એક ઈ શિબિર 21મી સદીમાં જ્યારે આપણે ટેકનોલોજીમાં આગળ વધ્યા છે ત્યારે ટેકનોલોજીના માધ્યમથી આપણે એક એવું કેમ્પ કે જ્યાં આપણે ફક્ત દેશ નહીં પણ દુનિયાભરના વક્તાઓને લાવી શકીએ. આપણા આજના વક્તા પણ એવા છે. આજે જો આપણે ફિઝિકલી જો ભેગા થયા હોત તો શું આપણા માટે પોસિબલ હતું કે આપણે યુએસએ થી વક્તાને બોલાવીએ? કદાચ થોડુંક અઘરું હતું. બહુ એમને ઇન્સિસ્ટ કરીએ તો વક્તા એટલા સારા છે કે આવે બી ખરા, પણ થોડી આપણે એમના માટે રાહ જોવી પડે, એમને આપણા માટે રાહ જોવી પડે. પણ ધીસ ઇઝ તો હું એવું પણ નથી કહેતી કે કાલે જ્યારે આ શિબિર પતશે ને તો તમારા બધાનું આમ જીવન બદલાઈ જશે કે એવું કશું જ નથી કહેતી. હું જસ્ટ એટલું કહેવા માંગુ છું, થોડોક બદલાવ આવશે આપણામાં, થોડો, एक थोड़ो અને एक कुछ तो बदलेगा. There would be a little change in us. अगर वो होगा ना तो हमारा जो उद्देश्य है ये दृष्टिकोण ई शिविर का वो सार्थक होगा. So I ensure you when you will finish this e shibir you will feel yourself enriched somewhere inside yourself. So come, let's grow for nation, let's think for nation, let's glow for nation. और एक बहुत, मैंने गुजराती में बोला, हिंदी में बोला, इंग्लिश में बोला, बट वो इसलिए है क्योंकि फ्यूजन इज द न्यू वर्जन, राइट? फ्यूजन इज द न्यू वर्जन. आज के तरुणियों को सब कुछ सीखना है, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश सब सीखना है हमें. पर एक बात हमने कभी नोटिस की, हम गुजराती में लिखे, हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, हमें लिखना तो एक ही चीज है, भारत माता की जय. वो सब में कोई भी लैंग्वेज में लिखा तो एक ही चीज जाता है, भारत माता की जय. तो ज्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि हमारे वक्ता बहुत ही उम्दा है, उनको सुनने में मुझसे भी ज्यादा मजा आएगा. तो मैं शिवानी जी और श्रेया दीदी को बोलूंगी कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाए और सभी को आप दिल से इसे माने और जरा सा इसको अपने में उतारें. आभार. જી ધન્યવાદ આરતીબેન. તમને બધાને હવે વર્ગની માહિતી તો મળી જ ગઈ હશે. તો હવે ભક્તિબેનને વિનંતી કરીશ કે આજના આપણા સ્પીકર માનનીય અંજલિબેન પટેલનો પરિચય આપે. નમસ્કાર. માનનીય અંજલિજી પટેલ આજે આપણા વક્તા છે. એ મૂળ ગોંડલિયા મહારાષ્ટ્રના છે અને અત્યારે ટેક્સાસ માં રહે છે, યુએસએ માં. એમણે ઇલેક્ટ્રોનિક એન્જિનિયરિંગમાં અભ્યાસ કર્યો છે અને 7 વર્ષ સુધી ભારતમાં લેક્ચરર રહી ચૂક્યા છે. યુએસએ જવા પછી સોફ્ટવેર એન્જિનિયર તરીકે એમણે કામ કર્યું છે અને એ એક સર્ટિફાઈડ યોગા ટીચર પણ છે. અત્યારે એ યોગા ટીચર અને લાઈફ કોચ તરીકેનું કામ કરે છે. બાળપણથી રાષ્ટ્ર સેવિકા સમિતિના સેવિકા છે અને અત્યારે એમનું દાયિત્વ યુએસએના નેશનલ સેવિકા પ્રમુખ તરીકેનું છે. આ દાયિત્વમાં એમણે ઘણા બધા દેશોમાં પ્રવાસ કર્યો છે અને આજે આપણને બધાને યુએસએ થી રહીને અહીંયા માર્ગદર્શન આપશે. આ સિવાય અન્ય પરિચયમાં આજે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે માનનીય રાજશ્રીબેન, આપણા ગુજરાત ક્ષેત્ર રાષ્ટ્ર સેવિકા સમિતિના કાર્યવાહિકા છે. માનનીય નીતાબેન પ્રજાપતિ, આપ ગુજરાત પ્રાંત કાર્યવાહિકાનું દાયિત્વ નિભાવી રહ્યા છો. ધન્યવાદ. જી ધન્યવાદ ભક્તિબેન. માનનીય સંધ્યાબેન પણ રહેવાના હતા. આરતીબેન, સંધ્યાબેન પણ હશે. Can we see the participants? માનનીય કાંચના જી છે આપણી સાથે, કાંચન મખીજા જી.
दीदी, हम आपकी उपस्थिति की विशेष नोंद लेते हैं। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार। હવે રાહત संध्या बेन, आप हैं क्या? एक मिनट। हाँ श्रेया दीदी, सॉरी। संध्या दीदी, સંધ્યાબેન નથી, મેં જોયું. ओके ओके फाइन, प्रोसीड। श्रेया बेन, તો હવે આપણે વધારે રાહ ના જોતા આપણે એક વ્યક્તિગત ગીત લઈશું અને તેના પછી આપણા વક્તાશ્રીનું ઉદ્બોધન સાંભળીશું. તો હું શ્રેયાબેન યોગીને વિનંતી કરીશ કે તેઓ વ્યક્તિગત ગીત શરૂ કરે. श्रेयाबेन योगी. हाँ हाँ। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, जननी समान धरती जिस पे जन्म लिया है, निज अन्न वायु जल से जिसने बड़ा किया है। जीवन वो कैसा जीवन इस पे अगर नवारा, भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, स्वर्णिम प्रभात जिसकी अमृत लुटाने आए, जहाँ सांझ मुस्कुरा कर दिन की थकन मिटाए, दिन रात का चलन भी जहाँ शेष जग से न्यारा। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, जहाँ गाम भीगा पावस भीनी शरद सुहाए, बीते शिशिर को पतझड़ देकर बसंत जाए, जिसे धूप छाव वर्षा हिमपात ने सवारा। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है, पाथन पुनित माँ का मंदिर सहज सुहाना, फिर से लुटे न बेटो तुम नींद में न खोना, जागृत सुतों का बल ही माँ का सदा सहारा। भारत हमारी माँ है, माता का रूप प्यारा, करना इसी की रक्षा कर्तव्य है हमारा। भारत हमारी माँ है। नमस्ते जी, आवाज ठीक है? हाँ ठीक है। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री कृष्ण। शुरुआत में जो आरती जी बोले ना कि यहाँ पे जो है सब युवा है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी दैट मेड माय डे वगैरह, मैं इसी को पकड़ के रखूंगी अगली सारी जिंदगी कि आरती जी ने बोला था उस दिन। सभी का इस दृष्टिकोण शिविर में और एक बार स्वागत। संस्कार से संस्कृति तक, यही शिविर का विषय है। ये दोनों शब्द हम कई बार सुनते हैं और मतलब भी पता है एक हद तक, पर सही में इसका मतलब हमें पता है क्या? ये शायद ये 2 दिन के शिविर के बाद इसका मतलब भी जानेंगे और उसकी गहराई भी। सभी आयोजकों का अभिनंदन करती हूँ और जो भी माननीय अधिकारी यहाँ पे है, शायद मैं जानती नहीं या अभी चेहरे भी नहीं दिख रहे, वो सभी को प्रणाम करती हूँ। जब मैं इस विषय को सुनी मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे मन में जो कुछ विचार आए वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। थोड़ा सा कुछ इंटरैक्टिव करेंगे, क्योंकि नहीं तो एक तो सामने नहीं देख रहे और मुझे तो काफी काले डब्बे दिख रहे। तो अगर आपकी बैंडविड्थ अच्छी है आपके घर में तो वीडियो भी चालू कीजिए, अगर नहीं है तो ठीक है। अंत में कुछ आपको क्या लगा 2-4 कमेंट भी सुनना चाहूंगी, क्योंकि जब भी कुछ प्रश्न आता है तो वो उत्तर देने वालों की सीख रहती है। आता है ऐसा जरूरी नहीं है हर बार, पर विचार जरूर करने लगाता है। इसलिए अंत में कुछ प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न आप लोगों के लिए, थम्स अप दे सकते हैं रिएक्शन सबके लिए अगर ऑन है तो। कितने लोग अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की है? इफ यू हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम प्लीज रेज, गिव मी थम्स अप। बढ़िया, बहुत थोड़े हैं यानी अपने नीचे रिएक्शंस करके एक ऑप्शन है, वहां पे हम देख सकते हैं। मतलब कैन यू सी मी? बढ़िया। तो अभी हमारा माध्यम हम मिक्स रखेंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों, ताकि कैन यू सी मी? यस यस दीदी। ओके, तो आई थिंक मुझे ही मैं स्पीकर व्यू करने के बाद नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा, पर ठीक है। तो हम अच्छा, हम लोग सब अच्छे संस्कारी लोग हैं ना? हम सब? Who will say no दीदी? Everybody will say yes and that is what is expected. तो संस्कार यानी क्या? संस्कार यानी हम किसी वक्त जिस तरीके से व्यवहार करते हैं ना, उसका आधार हमारे संस्कार होते हैं। हम एक दूसरे से जिस तरीके से बात करते हैं वो हमारे संस्कारों के कारण करते हैं। हम किसी प्रसंग में जो निर्णय लेते हैं, ये करना है या वो करना है, ऐसे कहना है या वैसे कहना है, ये हमारे संस्कारों पर आधारित होता है। हमारी मानसिक और बौद्धिक बैठक हमारे संस्कारों पर आधारित होती है। हमारे दादी जी को, नानी जी को, उनको देखिए, जब बहुत कुछ टर्मोइल रहता है फैमिली में, बहुत कुछ होते रहता है, तब वो बोलते ठीक है भगवान ठीक कर देगा। ये अंधविश्वास नहीं है, ये उनका विश्वास है।
और इसका मतलब हम लोग जो मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में बोलते हैं या आजकल के आधुनिक साइकोलॉजी में बोलते हैं, कीप इट कूल। वो अपने आप को कूल रखने का श्रेय भी भगवान को देते हैं। वो खुद शांत रहते हैं पर श्रेय भगवान को देते हुए कहते हैं भगवान सब ठीक करेगा। ये संस्कार है कि शांत मैं रही पर श्रेय मेरा नहीं है, श्रेय परमेश्वर का है। ये उनके संस्कार है। हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति सालों से चली आ रही है, फिर भी हम तो बदल रहे हैं, बदलना भी चाहिए। तो फिर ये सालों से चला आ रहा है वो क्या? सालों से चले आ रहे वो वैल्यूज, वो उसका बेस। और हमारे संस्कृति का बेस है संयम यानी कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल। हमारे संस्कृति का बेस है समर्पण, किसी और के लिए करना, श्रेय किसी और को देना। जैसे अभी एग्जांपल दी, नानी जी, दादी जी, दादाजी सब क्या बोलते, भगवान सब ठीक करेगा। ये श्रद्धा, ये हमारे संस्कृति का आधार है। भक्ति, ये हमारे संस्कृति का आधार है। और वैराग्य यानी डिटैचमेंट, ये हमारे संस्कृति का आधार है। तो आज कुछ संस्कार संस्कृति के बीच में कुछ बात करेंगे। और जैसा हम बोलते हैं कि हम सब संस्कारित है, अच्छे संस्कारित है। अगर कागज पेन बाजू में है, नोटपैड बाजू में है, तो क्या लिख सकते हैं क्या कि हमारे पे कौन से संस्कार है, हम संस्कारित है यानी क्या है, व्हाट मेक्स अस संस्कारित एंड व्हाई। और दूसरा प्रश्न साथ में लिख सकते हैं, ये जो संस्कार हमें मिले हैं वो किसने किए? उसका उत्तर चैट पे लिख सकते हैं। होस्ट देखेंगे कि आप पे संस्कार किसने किए। तो एक तो आसान सा जवाब आएगा शायद कि माता पिता ने किए। सभी शायद फटाफट जवाब देंगे। अच्छा मुझे बताइए कब किए? एक दिन 1 घंटा बैठ के रोज सुबह शाम। तो हम बोलते हैं कि शाम को भगवान की प्रार्थना करना ये एक संस्कार है। शाम को प्रार्थना करते हैं हम, संस्कार है। उसमें से किसी ने उत्तर लिखा होगा हम पूजा करते हैं या हम, तो ये एक ही संस्कार है क्या? पूजा करना है संस्कार खत्म, दिन भर डन डील, अभी कुछ भी कीजिए। तो फिर हम बाहर जिस तरीके से व्यवहार करते हैं उसके ऊपर लोग हमको बोलते संस्कारी छोकरी छे, है ना? वो किस बेसिस पे? सुबह तो पूजा हो गई, उनने तो नहीं देखे, फिर भी हम ऐसा कुछ करते हैं जिससे लोग बोलते हैं संस्कारी छोकरी। दूसरा, संस्कार इस शब्द का मतलब हम बोलते हैं नामकरण संस्कार है, विवाह संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है। इसको भी हम संस्कार का नाम देते हैं। तो संस्कार का एक मतलब रिचुअल्स भी होता है कहीं, तो भी पूरी तरह से नहीं। संस्कार इस शब्द की पूरी व्याख्या मुझे नहीं मालूम, ट्रांसलेशन कहीं तो वेगली मिल जाएगा, पर व्याख्या मुश्किल है क्योंकि उसके बहुत सारे पहलू हैं। और कोई गड़बड़ व्यवहार करता है तो बोलता है छोड़ दिए घर के किए सारे संस्कार, माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए थे, अभी क्या कर रहे देखो, ये भी सुनते हैं। इसका मतलब क्या? फिर माँ बाप ने तो संस्कार किए थे, बाद में क्या हुआ? संस्कार छूट गए यानी क्या? तो दूसरा कुछ अच्छा लगने लग गया, यानी उस व्यवहार का बेस बदल गया। यानी संस्कार से बचपन में होते हैं क्या? तो नहीं,
छोटा, जब बच्चे छोटे होते हैं तो बोलते बच्चों पे संस्कार करना चाहिए, यानी बड़े हो गए तो हमारे पे संस्कार नहीं होते क्या? होते हैं। पर जब छोटा बच्चा रहता है वो सिंगल फोकस्ड रहता है सिर्फ माँ बाप पे या घर पे, तब संस्कार करना शायद थोड़ा सरल होता होगा। जो हम घर में करेंगे उसी का उस पर असर पड़ेगा, इसलिए वो संस्कार क्षम उम्र कहते हैं। पर हम आज हमारे पे कौन संस्कार करता है? something which still we have impression of. Please in the chat कि कौन से चीजों का हमारे पे आज संस्कार हो रहा है, हमारे पे कौन संस्कार कर रहा है? वेरी गुड, सोशल मीडिया। और क्या कर रहा है? बिल्कुल सही आरती जी। हम लोग जब कुछ भी चीज, अरे सोसाइटी, यस, टाइप बी इंटरेक्टिव, डोंट स्लीप। फ्रेंड्स, यस। अरे आपके ऑडियो बंद है, चैटिंग बंद नहीं है सबकी। बढ़िया। तो हम आज जो भी सीखते हैं ना, उसके ऊपर हम कल क्या सीखेंगे वो निर्भर करता है। इसलिए हम जब छोटे बच्चे रहते हैं तब जो संस्कार करते हैं उसके ऊपर हम अगले की संस्कार को अंदर आने देंगे, वो निर्भर करता है। हमारे बचपन के संस्कार, हमारी वैल्यूज, ये हमारा फिल्टर है नई कुछ चीजें अंदर लेने का। बिना छन्नी के चाय पिएंगे क्या? बिना छाना हुआ चाय नहीं पिएंगे ना, छान के पिएंगे। पर बनाते समय डालना तो पड़ेगा, उसके बिना चाय नहीं बनेगी, इसलिए घर के बाहर तो जाना पड़ेगा। पर अंदर क्या लेना है उसके लिए थोड़ी छन्नी भी लगा सकते, तभी अच्छा लगेगा, नहीं तो लगेगा मुंह में कभी तो गलत तरीके से, है ना? तो हमारी जो छन्नी है बाहर की चीजें अंदर लेने की, वो हमारे बचपन के संस्कार और हमें क्या पता है उसके ऊपर हम कल क्या सीखेंगे वो डिपेंड करता है। अगर हमको गुजराती के अल्फाबेट ही नहीं आते तो आर्टिकल और नॉवेल क्या पढ़ेंगे? अगर हमको एबीसीडी नहीं आती तो इंग्लिश कहां से पढ़ेंगे? और हमको अगर कोई भी चीज का अगर हमको 1 2 नहीं आता तो गणित क्या करेंगे? तो गणित करने के लिए 1 2 3 4 तो आना पड़ेगा, है ना? और जब एडिशन सब्ट्रैक्शन आएगा तभी इंटीग्रेशन और कैलकुलस करेंगे, बराबर? तो हम जो अंदर लेते हैं वो हमने निर्णय करना है और वही हमारे संस्कार है। और आज का संस्कार हमारा कल के संस्कार क्या आना है अंदर वो निर्धारित करता है। और बचपन के थोड़े स्ट्रांग रहते हैं। तो जैसे किसी ने बोला फ्रेंड संस्कार करते हैं। एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी। एक किसान था, उसका कॉर्नफील्ड था बड़ा सा, मकई की खेती थी। तो बहुत अच्छे बीज किसी उसके दोस्त ने उसको दिया था दूसरे शहर से। तो उसने अपनी खेती की, बाकी सबसे इसका अनाज बहुत अच्छा आया, तो उसको पैसे ज्यादा मिले, बहुत खुश हो गया। फिर उसने अपनी बीज बनाई अपने ही खेत से, तो बहुत सारे बीज बनाई। तो उसके बेटे ने पूछा इतनी सारी बीज तो हमारे खेत में जरूरत नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, आजू बाजू के किसानों को दे दूंगा। तो बोले क्यों दोगे? वो भी फिर अपने जैसे पैसे कमाने लगेंगे, लगने दो। अगले साल इसकी फसल अच्छी आई और चलता रहा। क्यों उसने आजू बाजू में बांटा? क्योंकि जो पॉलिनेशन होता है
उसके लिए अगर बाजू का सब गड़बड़ रहा तो पॉलिनेशन भी गड़बड़ हो सकता है। तो जितना हमारा सराउंडिंग हम अच्छा करते जाएंगे, हमारा वो अच्छे होने में मदद करेगा। और इसी को, ये समझ में आई ना स्टोरी? यस नो में भी हम सब, हाँ, कि हमारा आजू बाजू, इसी को हमारे शास्त्रों में, हमारे इसमें बड़ा सा वर्ड यूज किया, सत्संग कीजिए। सत्संग कीजिए बोलने से लगता है अरे यार कौन भजन में जाएगा, पर सत्संग से भजन में जाना नहीं होता। हमारे आजू बाजू की चीजें, हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, उनके विचार, ये हमारा सत्संग होता है। जब हम सत्संग बोलते हैं और संस्कार बोलते हैं तो कैसे होते हैं, किस तरीके से वो हम देखते हैं। अभी एक स्टोरी बताऊंगी, एक या दो लोग अनम्यूट करके उसका मतलब बता सकते हैं। दो स्टोरी बताऊंगी। एक राजा था, उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद उसको आखिरी, पंडित जी एक एक चीजें करने बता रहे थे, आखिरी चीज राजा को बोला, जाओ भीख मांग के आओ। तो बोला किस चीज के लिए? आपको जो चाहिए मैं लाके देता हूँ। बोले नहीं, जाके भीख मांग के आओ। ठीक है, यज्ञ पूरा करना है, राजा बाहर जाते हैं। जो पहला इंसान दिखता है वो भिखारी होता है, तो राजा उससे भिक्षा मांगता है। राजा को क्या हुआ होगा भिखारी से भिक्षा मांगते समय, सोचिए। भिखारी को उस दिन अच्छी भिक्षा मिली रहती, उसकी झोली अच्छी भरी रहती है। रोज तो मुट्ठी दो मुट्ठी अनाज मिलता है, वो क्या करता है, झोली में हाथ डालता है, एक मुट्ठी अनाज निकालता है, फिर बोलता है ये तो राजा है, इसको क्या करना है एक मुट्ठी अनाज। सब छोड़ देता है, एक चिपटी अनाज लेके राजा को देता है। तो उसको पंडित जी ने बताए रहते, पहली जो भिक्षा मिलेगी लेके आ जाओ, क्योंकि विषय भिक्षा का नहीं है, भिक्षा मांगने का था। तो भिक्षा मांग के राजा आ गए, चिपटी अनाज, राजा का तो यज्ञ पूरा हो गया। भिखारी घर गया, खाना बनाने के लिए सब पतीले में डाला, तो कुछ उसमें चमचम आया। देखा तो उसमें चिपटी दाने सोने के बने थे। फिर सोचने लग गया, अरे मैं पूरा झोली डाल देता राजा के इसमें, पर नहीं डाला। डाला था चिपटी, मिली भी चिपटी। दूसरी कथा बताऊंगी। एक लड़का था, तो उसके पास कुछ 10 रुपए मिले थे, चलो आइसक्रीम खाते हैं आज। आइसक्रीम की दुकान में गया। छोटे से खेड़े की बात है, तो बोला कितने का है आइसक्रीम? तो एक 10 रुपए का था, एक 8 रुपए का था। 10 रुपए वाला उसका फेवरेट फ्लेवर था। सोचा नहीं, 8 रुपए वाला खा लेता हूँ। उसने 8 रुपए वाला खाया, ऑर्डर किया, बैठा, खाया मजे में, और फिर उठ के गया। तो जो वेट्रेस थी वो आके देखी, पहले उसने कीमत पूछी थी कौन सा आइसक्रीम कितने का है, 10 रुपए का, 8 रुपए का। 8 रुपए का आइसक्रीम खाया, वहां 2 रुपए रखा था टिप करके। अभी अगर किसी को अनम्यूट करके ये दोनों कथाओं पे एक आध 2 सेंटेंस कहना है तो प्लीज कहिए। Those who are not organizers, can they unmute? Aarti ji? Yes, they can. Somebody unmute and talk. This is not one way. Speaking of is one sanskar we have. Yes, Bhumika ji. I see you. Lighting. ભૂમિકા બેન, આપને બોલવું છે? हेलो हाँ, हेलो दीदी। श्वेतु जी। हाँ, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जितना बांटते हैं उतना ही हमको मिलता है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा शेयर करना चाहिए। शेयर करना, बढ़िया। मुझे कुछ बोलना है। आपका नाम भी बताएं। हेलो, आयुषी।
आयुषी मिश्रा। जी हाँ जी सिमरन बोलिए। मैम। कहना चाहती हेलो, am I audible enough? हाँ हाँ, मैं कहना चाह रही थी कि जो पहली वाली कहानी है उससे एक कहावत याद आ रही है मुझे कि जैसा बोओगे वैसा उगेगा या वैसा ही मिलेगा। तो उस भिखारी ने जितना दिया उतना ही उसे मिला, something like that। तो हम जितना अच्छा करेंगे उतना ही, मतलब इट्स लाइक अ साइकिल, लाइफ में जैसा हम जिस तरह का व्यवहार करेंगे वैसा ही हमें वापस चलेगा। तो इसका एक, ये तो सही है, वो हमारा डायरेक्ट कंक्लूजन है, पर इसको अगर संस्कारों से तरीके से देखेंगे तो भिखारी पे पूरी जिंदगी में देने का संस्कार ही नहीं हुआ है, वो देना सीखा ही नहीं है। पर ये बच्चा फिर भी देना सीखा है। कैसे सीखा? उसके पास हर वक्त ज्यादा था क्या? शायद नहीं था, पर कुछ तो उसके जिंदगी में ऐसा भी हुआ है जो कि वो देना सीखा। तो हम जो देखते हैं आजू बाजू में होता है उसी से सीखते हैं। जी, उसने जिंदगी भर मांगा है, लेकिन मांगा है तो कुछ मिला होगा ना, कुछ मिला वो है तो तो है। ये देखकर उसके मन में सोच आई कि अगर मुझे मिला है, क्यों मिला है? फर्स्ट थिंग इज मैंने मांगा इसीलिए मिला, किसी ने मुझे दिया, तो कोई मुझसे मांग रहा है तो किसी ने मुझे अगर दिया है तो मुझे भी देना चाहिए। तो वही साइकिल रिपीट हो रहा है। साइकिल रिपीट हो रहा है। और कोई भी, हम लोग जब कोई भी कथा का इन जनरल बता रही हूँ, इस विषय में नहीं, जब हम मॉरल सोचते हैं ना तो हमारी जो समझ रहती है वैसा मॉरल निकलता है। समय रहा तो एक बहुत फनी स्टोरी बताऊंगी, समय रहा तो याद दिलाइएगा, आउट ऑफ कॉन्टेस्ट है क्योंकि वो। तो हम जब हमारे आजू बाजू से हमारे पे संस्कार होते हैं और हम बोलते पूर्वजों की संस्कृति है, सालन से जतन किया है, परिश्रम करके जतन किया है और विचार पूर्वक जतन किया। कैसे खाना है, कैसे सोना है, कैसे जीना मरना है, कैसे व्यवहार करना है, ये सारे में संस्कृति है। उदाहरण देती हूँ, और वो सब हम लोग करते हैं जाने में अनजाने में। हम जब किसी से मिलते हैं तो अनेक तरीकों से कॉन्वर्सेशन शुरुआत करते हैं। व्हाट्सअप, हे, और जय श्री कृष्ण, नमस्ते। आपको पता है हेलो कहाँ से आया? हम जब फोन उठाते हैं हेलो बोलते हैं ना, कहाँ से आया? कौन है वो हेलो? मैं बता सकती हूँ? ग्रैम बेल की गर्लफ्रेंड का नाम है। हाँ जी। हाँ, ग्रैम बेल जिसने फोन का इन्वेंशन किया, उसके गर्लफ्रेंड का नाम हेलो है और हम सब आज तक हेलो बोलते हैं। उसने अपने गर्लफ्रेंड को अजरामर कर दिया। दूसरा, अभी मैं एक कुछ बोलती हूँ, आपके मन में क्या आया सोचिए, कहिए मत। पानी पूरी टेस्टी। टेस्टी है ना, मुंह में थोड़ा पानी आया, इच्छा हुई, प्लान कर लिए कब खाना है, सब कुछ हो गया अगले पिछले 1 मिनट में, या लास्ट टाइम की कितनी भद्दी थी या अच्छी थी वो सब याद आ गया। बराबर है ना? अब मुझे बताइए कि हम एक पानीपुरी जैसा शब्द उच्चारण करने से इतने सारे विचार हर किसी के अलग अलग मन में आए, तो हम एक दूसरे से मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जय श्री कृष्ण कहते हैं। क्या कृष्ण के विचार मन में आए क्या? आना चाहिए क्या? और वो आना चाहिए इसीलिए ये रिवाज हुआ होगा क्या? जय श्री राम कहते हैं, नमस्ते कहते हैं, तो जो मैं बोली हमारे संस्कार संस्कृति में हर चीज विचार पूर्वक आई है। तो जब जय श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिल में जो कृष्ण रहता है, या गीता कहने वाला हो, या राधा का हो, या मीरा का हो, या यशोदा का, उस कृष्ण का स्मरण करना, उससे कुछ सीखना। पानीपुरी से टेस्ट मुंह में आ सकती है, तो कृष्ण से एक क्वालिटी भी मन में आ सकती है। तो ये इच्छा से वो शुरू हुआ है। जय श्री राम कहते हैं, नमस्ते कहते हैं। अगर हम नमस्ते का सही मतलब जान के समझ के मन में लाके अगर नमस्ते कहेंगे, तो आई बो टू डिविनिटी इन यू, आप और मेरे में
एक ही परमात्मा है जिसको मैं वंदन कर रही हूँ। इस हिसाब से हम नमस्ते कहते हैं। अभी एक ही परमात्मा है, लड़ाई के, मतभेद के थोड़े से तो चांसेस कम होने चाहिए नमस्ते बोलने के बाद, अगर है मन में तो अगर किसी से थोड़ा डायलॉग टफ हो तो दिल से नमस्ते करके शुरुआत करके देख सकते हैं क्या। तो ये जो हमारे संस्कार किए थे उसके कुछ कारण थे, और यही हमारी संस्कृति है। संस्कृति से संस्कार निकले हैं और संस्कारों के कारण संस्कृति टिकी है। हमारे इसमें 3 शब्द है, संस्कृति, प्रकृति और विकृति। संस्कृति यानी अपने से बाहर सोचना, दूसरे के बारे में सोचना। प्रकृति यानी मैं और मेरा, अपना भला। और विकृति यानी मेरा भला तेरा बुरा। सिंपल है। तो अगर हम सबको ऐसा सोचते, सामने वाला मेरा भला सोचे, तो हम दूसरे का भला सोचेंगे तो सभी संस्कृत हो जाएंगे। इतना मुश्किल नहीं है, पर उसको रखना पड़ेगा, कुछ एफर्ट्स करना पड़ेगा। हर देश की, हर राष्ट्र की, हर समाज की एक संस्कृति होती है। और जैसा मैंने बताया, हमारी संस्कृति संयम, समर्पण, आत्मविश्वास, भक्ति, वैराग्य, इन चीजों पे बैठी हुई है। तो रहन सहन का तरीकों का बेस ही ये है। सालों तक लोग कुछ करते थे, हमें पता नहीं है क्यों करते थे। जैसे कृष्ण क्यों बोलते हैं, पगे क्यों लगते हैं, भगवान की पूजा सुबह क्यों करना है, खाना बनाने के बाद भोग क्यों लगाना है, एक दूसरे से व्यवहार करते समय रिस्पेक्टफुली क्यों करना है। तो समाज को साथ में रखने के लिए ये सब करना है। राजगोपालाचारी जी के अवर कल्चर, ये एक उनका बौद्धिक सीरीज है, में वो कहते हैं कल्चर इज द सम टोटल ऑफ द वे ऑफ लिविंग built up by groups of human beings and transmitted from one generation to another. और एक बार उनका कोट पढ़ूंगी, culture is the sum total of the way of living built up by groups of human beings and transmitted from one generation to another. यानी संस्कृति हमारे रहन सहन का तरीका है। फिर कैसे रख सकते हैं हम संस्कृति? तो कुछ 6 माध्यम है, और भी उसमें नाम जोड़ सकते हैं। एक तो भाषा, कौन सी और कैसी। कौन सी एक बात होती है, कैसी दूसरी बात होती है। इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, गुजराती बोलो, मराठी, जो बोलना है, पर क्या हमारी भाषा अच्छी है? अच्छी यानी जिस वक्त, जहां, जिस तरीके से बात करना चाहिए उसको अच्छी भाषा बोलते हैं। और दूसरा, हमारे जबान से निकलती है तो हमारा व्यक्तित्व हमारे भाषा पे निर्भर करता है। what we say is what we are। वैसे ही भूषा, सबको अच्छा दिखना अच्छा लगता है, किसको नहीं लगता? प्लीज रेज योर हैंड। सबको अच्छा लगता है ना? पर हम जो भूषा करते हैं उसके ऊपर हमारा व्यक्तित्व निर्भर होता है। आप केले खरीदने जाओ, क्या देख के खरीदते हो? छिलके? खाते तो नहीं, देखते तो छिलके ही है ना। तो उसी तरह अगर मैं साड़ी पहनूं या अभी मैं स्कर्ट पहन के आऊं, तो कुछ तो मेरे बारे में ओपिनियन बनेगा। हाँ कहिए ना कहिए, बनता है। पहला इंप्रेशन हमारे कपड़ों पे निर्भर करता है। तो हमें क्या, हमारे विचार और हमारे क्लोथिंग, आर दे मैचिंग? While choosing clothes, do we think a little, is this me or is this fashion? तो फैशन को रखते हुए पर मी को मत छोड़िए। भजन, भोजन, भोजन मतलब क्या खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है, हमारे इंग्रेडिएंट्स क्या हो, हमारी संस्कृति दिखाती है। कैसा परोसते हैं, हमारे यहाँ परोसने का तरीका है। क्यों है?
क्योंकि खाने वालों का मन प्रसन्न हो इसलिए। इधर का उधर परोसे तो चीज की टेस्ट नहीं बदलती, पर लुक एंड फील जरूर बदलता है। तो इच्छा क्या है? खाने वाला तृप्त हो, संतुष्ट हो, आनंदी हो। इसलिए खाने का तरीका भी है, परोसने का तरीका भी। क्यों छोड़े? अरे किधर भी परोसे तो चलता है ना, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल नहीं पड़ता, टेस्ट में नहीं पड़ता। पर कारण क्या है, पहले फाइंड आउट तो करते हैं कि इधर ही क्यों डालना है उसको। भवन, हमारे घर कैसा हो, आप किसी के घर पे जाइए और एक अगरबत्ती की स्मेल आती है, वर्सेस सामने कुछ फोटो दिखता है। अगर सामने कुछ फिल्मी हीरोइन का फोटो है, बाजू में अगरबत्ती लगी है, कंफ्यूजन होगा ना दिमाग में। गलत है क्या? कुछ भी गलत नहीं है, पर मेल खा रहा है क्या? किस चीज का मेल खा रहा है? अभी है वहां पे फोटो, घर में अच्छी स्मेल चाहिए, लगाई मैंने अगरबत्ती, कुछ गलत नहीं होगा, पर उससे इंप्रेशन तो बनता है ना। तो हमारा भवन हमारे संस्कृति की पहचान है, और भाव जिसमें सारा आर्ट एंड साइंस आता है। दो छोटी कथाएं बताऊंगी और समाप्त करूंगी, क्योंकि ये सारी संस्कृति और संस्कार हम क्या सुनते हैं, कैसा सुनते हैं, उसके ऊपर है। एक आदमी था, रोज पेन घुमाता था, रोज पेन घुमाता था, परेशान था, मेरे पेन के पीछे बहुत खर्चा हो रहा है। तो एक दिन उसको कोई रियल्टर मिलता है, होलसेलर मिलता है, और वो उसको सस्ते पेन देता है। वो बहुत खुश होता है, कह रहे अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके बाद उसके दोस्त आता है, वो दोस्त को बोलता है अरे आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को इतने सस्ते पेन मिले ना, मैं बहुत घुमा सकता हूँ। दोस्त सुनता है। 2-3 दिन बाद उसका जन्मदिन रहता है, दोस्त उसको एक 100 रुपए की पेन गिफ्ट देता है। तो बोले मैं रोज घुमाता हूँ। बोले नहीं, मेरी इच्छा है तू कल से यही पेन यूज के रहेंगी, उतने दिन रहेंगी, फिर घूम गई तो घूम गई, तेरी यही वो सस्ती पेन तेरे पास। वो उसको 2 महीने बाद मिलता है, उसके पास पेन रहती है। बोले क्यों, यूज नहीं कर रहा है क्या? तो बोले कर रहा हूँ ना, रोज यही वापरता हूँ, अभी तक घूमी नहीं। तो बोले क्यों? उसे 100 रुपए का लेबल लगा इसलिए। तूने तेरे पेन की आज तक वैल्यू नहीं किया था, इसलिए वो घूम रही थी। आज तू उसकी कीमत जाना, इसलिए पेन घूमना बंद हो गया। दूसरी, जब हम संस्कार संस्कृति रखने की बात करते हैं, तो इसके हिसाब से स्टोरी बताऊंगी। एक लड़की अपने पिता को बोलती है मैं कॉलेज जा रही हूँ, आजू बाजू का माहौल ऐसा है ना, रहने दीजिए, आपके संस्कार संस्कृति मेरे से नहीं होने वाला है। उसकी माँ उसको पूछती है अरे ऐसा क्या हो गया? तो बोले नहीं नहीं, सब क्या क्या करते हैं और आप मुझे बोलते हो ये मत कर वो मत कर, ऐसा कर नहीं होगा। तो माँ उसको किचन में लेके जाती है, 3 चूल्हे पे 3 चीजें पानी उबालने रखती है अलग अलग। एक में डालती है अंडा, एक में डालती है आलू, और एक में डालती है चाय पत्ती। 10 मिनट उबलने के बाद बोले क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? आलू पक गया, अंडा पक गया, चाय बन गई, चलो पीते हैं। तो बोले आलू लॉस्ट हिज आइडेंटिटी, पक गया, वो मुशी हो गया। अंडा दिख वैसा ही रहा है, पर उसमें जो सृजन की शक्ति थी, जो एक नया जीव जन्म देने की शक्ति थी, वो चली गई। दिख वैसा ही रहा है, और चाय ने पूरा पानी बदल डाला। आपके आजू बाजू में वही होने वाला है। आपको खुद बदलना है या आजू बाजू को बदलना है, वो आपका निर्णय। ये 4-5 स्टोरी बताई मैंने। अगर इन कथाओं ने आपके मन पे कुछ भी स्क्रैच किया हो, तो आपके शिक्षकों को आज नहीं, 1 हफ्ते बाद बताना। नमस्ते। आरती जी, जी दीदी। समय है तो प्रश्नोत्तर करेंगे, खत्म हो गया है तो। हाँ जी दीदी, कर सकते हैं।
अगर किसी को प्रश्न है तो। क्वेश्चन पूछना है। आपने बीच में एक बात बोली थी फैशन के बारे में कि जो हम फैशन फॉलो करते हैं क्या वो हमारी पर्सनालिटी पे जाता है कि नहीं, राइट? तो मेरा क्वेश्चन है कि हाउ डू वी डिसाइड दैट? मतलब हमें पता है कि हम कौन है, हु एम आई, इज दिस मी, आई नो दैट। और ये जो फैशन है, फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज पसंद आ गई और वो चीज मैंने पहन लिया, वो चीज यूज कर ली मैंने अपने ऊपर, तो हाउ डू वी डिसाइड दैट इज दैट माई फैशन? मतलब वो मी और वो फैशन को कंबाइन करके वो कैसे पता चलेगा? परफेक्ट। कभी फैशन जो आती है ना, कभी रंगों की आती है, कभी ढंगों की आती है। तो वो मैं हूं कि नहीं, इसका मतलब ये होता है कि कभी कभी हम कहाँ जाते हैं और किस तरीके से कपड़े पहनते हैं। अभी साड़ी पहनना है, एग्जाम्पल, मैं ब्लाउज किस तरीके का पहनूं, उसके ऊपर लोग मेरे बारे में जो पहनना है, सोचना है, वो सोचेंगे। मैं साड़ी किस ढंग से, अगर मैं गुजराती साड़ी पहन के कहीं गई फैशन करके, अभी गुजराती साड़ी की फैशन चल, तो लोगों का पहला इंप्रेशन मेरे बारे में क्या होगा? मैं गुजराती हूँ। अगर मैं बंगाली साड़ी पहन के गई तो शायद पहला इंप्रेशन ये हो सकता है कि मैं बंगाली हूँ। सिंपल सी चीज है। तो हमें अपने बारे में जो बताना है ना लोगों को, आप इंटरव्यू जाते हैं, राइट? आप इंटरव्यू में साड़ी पहन के जाते हैं क्या? डिपेंड्स ऑन विच इंटरव्यू यू आर गोइंग फॉर, है ना? तो अभी उसमें भी आप जो कलर का चॉइस करते हैं, आप जो स्टाइल का चॉइस करते हैं, वो जिस वक्त जहां पे जाना है उस तरीके से करते हैं। वैसे ही फैशन अगर आपके रुचि की हो तो कीजिए। फॉर एग्जाम्पल डैंगलिंग इयररिंग्स, इफ यू लाइक इट एंड इफ यू कैन कैरी इट वेल तो पहनिए। अगर मैं डैंगलिंग इयररिंग पहन के अगर बार बार ऐसे कॉन्शियस हो जाऊं और मेरे व्यक्तिमत्व को वो जचता नहीं, ये मुझे रुचता नहीं, तो नहीं पहनना है। दूसरा, हम जो कपड़े पहनते हैं उसके ऊपर लोग हमारे बारे में ओपिनियन बनाते हैं, तो वो अगर हम नहीं है तो फिर क्यों करना है? हम क्या है हमें पता है तो हम करते। 90% we do that, but there is a good 5-10% where we'll fall prey of that fashion कि अरे मुझे, फिर क्या होता है, फिर वो करना ही है। इतना अपने आप को स्ट्रेस लेते हैं फैशन करने के लिए, वो गड़बड़ है। ओके, मुझे आपका आंसर समझ आ रहा है, लेकिन एक छोटा सा पर्सनल क्वेश्चन इफ आई मे आस्क, पूछूं? आरती जी, समय है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हाँ हाँ दीदी, और आपको एक, आप कुछ बोल रहे थे ना, एक कुछ वार्ता भी बाद बताने वाले थे, बाद में कोई स्टोरी थी हाँ जो आप बताना। हाँ, तो इनका क्वेश्चन हो जान दीजिए, बताती हूँ। जी 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 सिमरन बहन। जी थैंक यू। ये फैशन के ऊपर ही है क्वेश्चन। अभी जो आपने एग्जांपल दिया बहुत अच्छा था, डैंगलर्स का, मैंने इयररिंग्स भी पहन रखे। तो जैसे आपकी पर्सनालिटी है, आप जिस तरह स्टोरी सुना रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे कोरिलेट करके, वो मतलब बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट इंस्टिंक्ट मेरा आपके हेयर कट पे गया। वो इसलिए नहीं क्योंकि आपका हेयर कट बाकियों से अलग है, वो इसलिए क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मतलब जो छोटे बाल होते हैं मुझे काफी पसंद होते हैं, और ये चीज आई डोंट थिंक हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है। मैंने रिसेंटली बाल कटवाए हैं और प्रोसेस मेरे वाले लगते हैं मिड पे, और आज मेरे वाले लगते हैं, कल ही मैंने हेयर कट करवाया। तो ये थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग है मेरी सोसाइटी में। मेरा क्वेश्चन है कि हाउ डू आई, मतलब मैं कन्विंस कैसे करूँ कि दिस इज मी एंड दिस इज माय फैशन? दो चीजें होती है कि एक्सेप्टेंस जो है ना, किससे एक्सेप्टेंस चाहिए आपको, इससे भी डिपेंड करता है। अगर हम घर वालों की बात करते हैं, हाँ, कि घर वालों को नहीं एक्सेप्ट हो रहा है, तो कुछ तो उसके संस्कारों के कारण है, कुछ तो उसका बैकग्राउंड है। तो कोई भी नई चीज एक्सेप्ट करने के लिए समय लगेगा। वो सही है गलत है, हर एक का उसी बोली कि हर एक फैमिली का अलग हो सकता है। हाँ, पर इज योर पर्सनालिटी
fashion trait is more dear to your what your parents or somebody feels. You have to balance out and make a kind of midway between that. क्योंकि ये फिर हमारे जो संयम और समर्पण वाला विषय आता है ना संस्कृति का, वो आता है कि आपको क्यों करना है. इट्स मी एग्रीड, बट इज मी our संस्कृति? नहीं. इट्स नॉट अबाउट हेयर कट, बट मी वर्सेस माय फैमिली वैल्यू, वो आता है. तो इस कुछ चीजों को समय लगता है. मैं और एक उदाहरण दूंगी. अभी समय कितना है आरती जी? वैसे आप और 5 मिनट ले सकते हैं, ठीक है. तो एक उदाहरण मैं खुद के अनुभव का बताती हूँ. मैं जब भारत में थी तब की बात है. मेरे दादी जी मेरे घर में थे. मेरी शादी हो चुकी थी और मैं जॉब करती थी जो भारत में बोली कि लेक्चरर करके. मेरे एक कलीग घर पे आए हुए थे, तो उनके हाथ में एक प्लेट थी, उसमें कुछ मिठाई ऐसा कुछ था, तो वो सामने रखी थी, उनके हाथ में थी. उस वक्त मेरी दूसरी फ्रेंड आई उसी वक्त, तो मैंने उसको पूछी बर्फी खाना है, तो उसने उस प्लेट से ली और खाई. 5-6 बर्फियां रखी थी, पर हाथ में एक मेल कलीग थे, उनके हाथ में प्लेट थी. मेरी दूसरी फीमेल कलीग आई, उसने वो उठाई और खा गई. मेरी दादी वहीं पे बैठी थी. एक सेकंड मेरे दादी के, ये मैं अपना भाग्य समझती हूँ, ये मैं देखी, और उस वक्त मेरे सेंसेस जागृत थे. उस समय मैं संस्कार क्षम थी. तो मेरे दादी के नजर में एक सेकंड के लिए, अरे क्या लड़की है ये, आया. और दूसरी सेकंड में मैंने उसकी नजर क्लीन पाई. ये मैं देखी कि अरे ये क्या हो रहा है, पर नहीं ये ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा जो चेंज है उसने एक्सेप्ट की. आज मैं थोड़ा चेंज एक्सेप्ट कर पाती हूँ क्या, ये मैं हर वक्त सवाल अपने आप से पूछती हूँ व्हेन आई इंटरेक्ट विथ माय डॉटर्स. तो चेंज दोनों तरफ से रहता है, पर समर्पण भी भाव होता है. तो दोनों है. तो अभी आरती जी पे छोड़ूंगी. स्टोरी सुनना है या क्वेश्चन लेना है? आरती जी ऑल योर्स. नहीं, दोनों ले सकते हैं, दोनों. क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में लिखें. आई जस्ट, मेरा थोड़ा टेक्निकल इश्यू हो गया था, तो आई हाँ. और दीदी आप पहले स्टोरी स्टार्ट करें. मीनवाइल दूसरी स्टोरी जो मैं बोली कि हम जो समझते हैं, हमारा दिमाग जहाँ चलते रहता है ना, वैसा ही हम समझ पाते हैं. हमारा लिमिटेशन है अगर हम चीज कोई समझ नहीं पाए तो हमको महाभारत की वो कथा पता है, जब सारे पांडव, और ये थोड़ी लाइटर मोड में कथा है. इसमें मैं जोक नहीं कर रही हूँ, सिर्फ अपने आप के लिमिटेशन की बातें कर रही हूँ, ये ध्यान में रखिएगा. तो किसी ने, हाँ, तो 5 पांडव और द्रौपदी वनवास में थे, पर उनके पास वो अक्षय पात्र था जिससे उनको खाना मिलता था, है ना. तो एक बार, और ये उसका नियम था कि एक बार खाना खा लिए फिर अक्षय पात्र में कुछ नहीं होगा उस दिन के लिए. तो उस दिन खाना होता है. उसके बाद दुर्वास मुनि अपने कई शिष्यों के साथ आते हैं मिलने, आशीर्वाद देने, और कहते हैं हम खाना खाएंगे, हम स्नान करके आते हैं, हम खाना खाएंगे. द्रौपदी बहुत परेशान होती है कि अब कैसे खाना खिलाऊंगी मैं, अब क्या होगा. तो कृष्ण भगवान आते हैं, बोलते हैं क्या हुआ, तो वो बताती है. तो बोले निकालना वो थाली. तो कहती है नहीं, खत्म हो गया है खाना. तो बोले निकालो. वो निकाल के लाती है, तो उसमें एक दाना होता है चावल का लगा हुआ. तो कृष्ण भगवान वो चावल का दाना खाते हैं. तो कृष्ण भगवान संतुष्ट होते हैं. हमारी संस्कृति कहती है, हम जानते हैं कि हम सब में वही भगवान है. तो भगवान तृप्त हो जाते हैं, सारे साधु, सारे मुनि तृप्त हो जाते हैं, और वो आके सिर्फ आशीर्वचन बोलते बोलते हमें भूख नहीं है. तो इसका मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, कि कृष्ण भगवान तृप्त है तो वो सारों को तृप्त कर सकते. दूसरा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या, कृष्ण भगवान द्रौपदी की सहायता करने आए. और तीसरा मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अपनी अपनी समझ है. जो अद्वैत सिद्धांत जानते हैं वो बोलते कृष्ण भगवान तृप्त तो सारे तृप्त.
दूसरा सिद्धांत बोलता है कृष्ण भगवान द्रौपदी की हर वक्त रक्षा करे, वो भक्ति वाला विषय है। और तीसरा, अगर कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ अपना ही मर्यादित ये है, तो द्रौपदी राजकन्या थी, उसे बर्तन धोना नहीं आता था, इसलिए धोने के बाद भी थाली में एक चावल का दाना रह गया। तीसरा मॉरल कि द्रौपदी को बर्तन धोना नहीं आता था, ये मॉरल निकालना है या अद्वैत का सिद्धांत निकालना है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है, हम कहाँ पे। एक निकिता जी का क्वेश्चन था, मैम शुड वी think about people's opinion or think about our own happiness? Where your happiness, it depends on where your happiness lies. If you can make someone upset and be happy intensely, then just your happiness. मगर हम जब बोलते हैं कि हमारा माहौल का हम, इट्स नेचुरल। आप सोचिए कि आपका हैप्पीनेस है चलो पानी पूरी खाने में, और आपके सामने एक छोटा बच्चा रो रहा है भूख के कारण, क्या आप खुश हो पाओगे? नो मैम, नहीं हो पाएंगे। इसलिए ये इसका एक रूल नहीं है। आप पूछिए अपने आप से कि किसका ओपिनियन, क्यों ओपिनियन, वो ओपिनियन क्यों दे रहे हैं। सारों का ओपिनियन हमने लेना है क्या? बिल्कुल नहीं। पर जो ओपिनियन दे रहा है वो क्यों दे रहा है, उसके पीछे भाव क्या है, और कभी कभी हमारा समर्पण है क्या, समर्पण की आवश्यकता है क्या। अगर जबरदस्ती में कोई आते जाते, वो पॉपुलैरिटी वाली चीज है, ओ मैं सबके यू कांट बी लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, इट्स नॉट पॉसिबल। पर अगर ओपिनियन के पीछे कुछ कारण है तो समझिए। अदर्स हैप्पीनेस वर्सेस योर हैप्पीनेस का एक बहुत गहरा विषय है वो। तो क्या करना चाहिए, इसका एक उत्तर बिल्कुल नहीं है, पर समर्पण, आजू बाजू में देखना, संयम, ये सब हमारे संस्कृति पे है। पर आत्मविश्वास ये भी हमारे संस्कृति में है। तो दोनों का जो बैलेंस बराबर है वो कीजिए। पूरी स्टोरी पता है बिना में एक उत्तर तो पॉसिबल ही नहीं है किसी के लिए। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली वो हमेशा संजोगों पे भी निर्भर होता है, कैसा अपना दृष्टिकोण, मतलब एग्जैक्टली There क्या comes सोचते the हैं उस पे भी दृष्टिकोण। होता है। एक सृष्टि या एग्जैक्टली अगेन एक सृष्टि पटेल का सवाल है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें हमारी कंफर्टनेस के लिए क्लोथिंग एंड फैशन को अपनाते हैं, लेकिन सोसाइटी से एक्सेप्ट नहीं करती, तो इनके दृष्टिकोण को कैसे बदले? ये हर तरुणी की शायद मन में सवाल है। एक सोचना चाहिए, ये फैशन आती कहाँ से है और ये फैशन क्यों है, कौन बनाता है ये फैशन? कैन वी बी द फैशन स्टेटमेंट? Can we, whatever is comfortable in our, can bindi be the fashion? Can well dressed person be the fashion? क्यों पूरे इसमें सूट एंड टाई यही फैशन है? क्यों शॉर्ट्स फैशन नहीं है? आज भी सूट और टाई यही फैशन मानी जाती है। तो फिर why the fashion is something which society is not accepting? यानी कुछ तो गड़बड़ है, वो गड़बड़ क्या है? क्यों सोसाइटी नहीं मान रही है और ये फैशन ला कौन रहा है? तो यहाँ पे आत्मविश्वास की बात आती है कि मैं जो पहनी हूँ ये मेरा व्यक्तित्व अगर है तो फैशन, इसीलिए बोले कि फैशन का आना इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ होल टॉपिक इन इटसेल्फ कि फैशन ला कौन रहा है। हम अगर 10 लोग, मैं आरती जी समय है क्या? एक उदाहरण देना चाहूंगी। जी दीदी हाँ यहाँ पे हाँ, जब मेरी बेटी स्कूल में थी तब
वो हिंदू क्लब चलाते थे कुछ दिनों के लिए। तो दिवाली आई तो बोले कि आज इंडियन ड्रेस पहन के जाओ स्कूल में। तो पहली बार जब गई, बहुत अपना टी शर्ट साथ में लेके गई, तो पैंट पे कुर्ता पहन के गई, उससे ज्यादा हिम्मत नहीं बन रही थी उसकी। और साथ में टी शर्ट लेके गई कि मम्मा ज्यादा गड़बड़ हुआ तो मैं मेरा टी शर्ट पहन लूंगी। तो शौक क्या है, अच्छा दिखने का ही है ना स्कूल में। तो गंदे दिख रहे हो क्या? नहीं दिख रहे हो, जाओ। गए, पूरा दिन पहन के रहे, आनंद में रहे, बिकॉज देयर वर गुड कॉम्प्लीमेंट्स। Oh wow, you're looking cute. That's what we look for, right? कुछ लोग पहन के आए ऐसे ही आधा पाधा, एक दो लोग। अगले साल दिवाली के दिन, इंडियन लोग बहुत है, नहीं है ऐसा नहीं है, दिवाली के दिन इंडियन कपड़े पहनने का थोड़ा स्टाइल बन गया, काफी लोगों ने पहने। उसके अगले साल बाकी लोग भी विश करने लग गए हैप्पी दिवाली। तो एक्सेप्टेंस किस चीज का लाना है हम भी डिसाइड कर सकते हैं। हम कोई तो क्यों डिसाइड करें हमारे लिए? जो अच्छा है, जो रुचता है, पचता है, जिससे सबको अच्छा लगे, वो क्यों नहीं हो सकती फैशन? क्यों फैशन ऐसी हो वो जो समाज को एक्सेप्टेड नहीं? मीन्स मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये करो या ये नहीं करो, पर ये डिसाइड कौन कर रहा है कि यही फैशन है, वो मेरा सवाल है। बट दीदी समटाइम्स मैं सबके हिसाब, सबके ऑन बिहाफ बोलती हूँ। आई थिंक तो ये सृष्टि पटेल जी का सवाल था, अगर आपको पूछना है तो आप भी बोल सकते हैं। बट ऑन सबके बिहाफ पे मैं बोलती हूँ कि जैसे ये होता है कि देन दिस लेक्चर शुड बी गिवन टू आवर पेरेंट्स, रिलेटिव्स, और ये हमसे ज्यादा उनको सुनाने की जरूरत थी। या फिर इट इज लाइक अगर हम हमारे दिल की आवाज सुनते हो और मानते कि इट इज ट्रुथ, then sometimes it's like we need a validation कि नहीं आप ठीक हो, तब हमको आप जैसे को सुनना पड़ता है। देखिए, ये डिबेट तो 2 जनरेशन में अक्सर होगा। हम करने ही वाले कल डिबेट को कोई नहीं, पर किस लिए हम डिबेट कर रहे हैं, what point we want to make, we should be like go one level up and debate, that's all. जी कि मैं वही मेरे बेटियों को बोलती थी, अरे रिबेल करो मेरे से, पर कुछ मेरे से अच्छा करके रिबेल करो ना। तो it happened and I had a very क्या बोलते हैं, stressful 3 months because of a rebel, but which was not a bad rebel. Let me accept she is not anywhere around. हम सबके पेरेंट्स भी आपके जैसा मतलब थोड़ी फ्रीक्वेंसी और मैच हो जाए। हाँ, मेरी बेटियों से भी कभी पूछ लेना। नेहा टोडी जी वैसे का, मेरी 2 बेटियां हैं और एक की शादी हो चुकी है, दूसरी भी जॉब कर रही है, और वो 30 साल और 30 and 27 years। ये बताना आवश्यक था क्योंकि आप दिखते नहीं है वो ऐसे, आप हमारे जैसे तरुण ही दिखते। एक दीदी और एक सवाल है और एक बार नेहा इसी को टोडी लेके जी बैठेंगे का। आरती जी, बताइए। नेहा टोडी जी का, मैम आई कैनॉट इग्नोर द थिंग्स विच आर रॉन्ग, आई वांट टू फाइट फॉर इट, पर संस्कार कहते हैं बड़ों के सम्मान सामने ना बोले, व्हाट टू डू? मैं मेरा ना फोन नंबर देती हूँ, हम लोग नहीं सीरियसली बता रही हूँ, ये विषय जो होते हैं ना वो डिटेल बात कर सकते हैं। आई वुड लव टू। आरती जी के पास मेरा नंबर है, प्लीज ले लीजिए, मैं कभी भी बात कर सकती हूँ, अच्छा लगेगा मुझे नेहा भी सुनना। टोडी जी आप हैं या वहाँ पे क्या? क्योंकि समय का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, वी आर हैविंग हार्डली। और एक हीरल व्यास जी का सवाल है, अगर उनका अगर हो जाए। या नेहा टोडी जी, ma'am will talk to you. we can be doing a conference, right? Okay. Sure. Oh. I love to chat with Anju Didi, so we will be doing conference. हीरल व्यास जी का एक सवाल है,
नमस्ते दीदी, मेरा क्वेश्चन है कि कभी कभी बड़े लोग संस्कार भूल जाते हैं और कुछ ऐसा बोलते हैं कि बुरा लगता है। अब बड़े हैं तो उन्हें ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, तो कैसे बात कर। सी दिस इज वन और सेम थिंग, लैंग्वेज उनकी इंग्लिश थी, इनकी हिंदी है, पर सवाल तो एक है दीदी। तो आप 5 मिनट ले लीजिए पर बोल दीजिए। देखिए, संयम हमारे संस्कार है, वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं, है ना। अभी कभी पर्सनालिटी भी जो डेवलप होती है ना, कई कारणों से होती है। जैसे मैं बोली सत्संग से, अगर कोई व्यक्ति, मैं एक फनी एग्जांपल देती हूँ। मेरे ससुर जी सिविल कॉन्ट्रैक्टर है, तो दिन भर लेबर के साथ काम करते थे। तो जब दिन भर लेबर के साथ इंसान काम करता है ना, तो उनको हर चीज डिटेल में समझानी पड़ती है। और उनकी आदत बन चुकी थी कि कुछ भी सेंटेंस के आगे पीछे वो बोलते थे, समझे ना। हाँ, तो शायद वो जिन लोगों से डे टू डे व्यवहार करते थे, उसके कारण उनकी वो आदत थी। तो मेरी बेटी छोटी थी, वो 2 साल की थी, जैसे तैसे बात करना सीखी थी। दादाजी के बाजू में जब भी समय मिला बैठी रहती थी। तो वो भी किसी को भी कुछ भी बोले, मम्मा दूध दे, समझी ना। फन अपार्ट, और ये इम्पैक्ट है। दादाजी बोलते हैं, उसने भी बोलना है। अभी वो किसी को भी कुछ भी बोल के आगे अगर समझा ना बोलोगे तो नहीं है बराबर। छोटी सी थी तब तक ठीक है, तब अच्छा लगता था, प्यारा लगता था, पर ये इम्पैक्ट है। तो कौन कहाँ पे बड़ा होता है ना, वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, ये भी होता है। फिर दूसरी चीज की, अगर कोई चीज की मर्यादा होती है, कोई छोड़ता है तो उसको कितना लेके बैठना है, कितना छोड़ना है, ये जो फैमिली इश्यूज रहते हैं ना, वो ऑल टुगेदर इट इज वेरी डिफरेंट। और छूटती है कभी किसी की मर्यादा, उसके कारण होते हैं, है ना। हम जिस माहौल में बड़े हो रहे हैं, वो किस माहौल में बड़े हुए, उसके ऊपर कुछ निर्णय होता है। तब तो ये नहीं था ना बच्चों का सुनना है करके, ये तो अभी आया है। तभी सबका भला ही हुआ था, अभी भी भला ही हो रहा है। तो ये जो कुछ चीजें बदल रही है, पर बेस क्या लेना है वो देखना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग एक और काम कर सकते हैं, हम लोग इस विषय को लेकर अंजू दीदी के साथ एक स्पेशल वेबिनार करेंगे कि हम लोग कैसे हमारे पेरेंट्स को मतलब क्या कैसे बात करेंगे। एक काम करते, मेरे बेटी को भी बुलाते हैं। डन है, डन है। और किसी को कुछ पूछना है क्या? They can unmute yourself and ask. और एक चीज बोलूंगी कि कुछ चीजें जो सालों से चलती आ रही ना, हम बोलते हैं हमारी दादी भी करती थी, उनकी दादी भी करती थी, उनकी दादी भी करती थी, और कर रहे, तो हमें वो नहीं करना है। क्यों नहीं पट रहा है? तो जो 150, 200, 400 साल से लोग कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना है, क्योंकि हमें नहीं पट रहा है। तो क्या हम ये बोलना चाहते हैं कि वो सब गड़बड़ थे? अगर नहीं, ये विवेकानंद की इसमें मैंने पढ़ी थी कि हम जब सन्यासियों को बोलते हैं ये सब ओ ऐसे उठ सकते हैं, इन्हें दिखता है, ये तो गड़बड़ है, उसके पहले ये सोचिए कि आपने कभी उनने क्यों किया, उसके जड़ तक जाने की कोशिश की है क्या? जड़ तक जाइए, समझिए, उसके बाद जो नहीं जमता, नहीं पटता, उस पर जरूर बातें कीजिए। पर बिना समझे कि वेयर दे आर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं जय श्री कृष्ण का जो एग्जाम्पल दी, हाय जय श्री कृष्ण ओल्ड फैशन चेहरे, हाय बोलवा लो, कुछ मतलब नहीं है वो वर्ड का, तो चलेगा ना, बड़ों को बोल सकते हैं जय श्री कृष्ण, उन्हें अच्छा लगता है। हम हमारे बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, ये भी कभी सोचिए कि what you want them to do and do all that. मेरी बेटी बोलती थी, मम्मा ये मैं नहीं करने वाली, ये मैं नहीं करने वाली हूँ। बोली लिस्ट बना, जिस दिन सारी लिस्ट काटेगी उस दिन आके मुझे बता।
Didi, it was really nice talking to you. Actually, I should have मतलब अगर किसी का questions नहीं है और हम लोग जो भी interested है, I think everyone is having my number. Ping me. We will have a very good webinar with Anju Didi. She is very nice to talk. Right? जी. Shall I hand over to the host, Shivani ji and Shreya ji? सभी को नमस्ते, मुझे बहुत अच्छा लगा और जो भी अधिकारी है उनको प्रणाम। उद्घाटन तो अधिक ऐसा लाइट होना चाहिए कि नहीं पता नहीं मुझे, अगर कुछ गलती हुई है तो हमें माफी। भी बहुत अच्छा लगा। I have enjoyed the whole session, ma'am. I am a professor in the institute. I have enjoyed the whole session, ma'am. Thank you. Yeah, Kanchan Makhina ji है, Ram Tarun प्रमुख। Shivani and Shreya Didi, can you continue the session? चलिए मैं जा सकती हूँ आरती जी? 2 minutes. श्योर श्योर, नो हरी। जी आरती बेन, अंजलि जी का वक्तव्य सुनकर मेरा तो दृष्टिकोण बदला, आपका बदला। और इसी जिज्ञासा को और आगे बढ़ाने के लिए मिलते हैं अगले सेशन में। एक विशेष सूचना, चर्चा सत्र, जिसमें आप बोलेंगे और हम सुनेंगे, यानी पेपर प्रेजेंटेशन के साथ चर्चा सत्र। आप सभी का अपने अपने ग्रुप लीडर्स के साथ संपर्क तो हो ही गया होगा। आपके विचार भारत के लिए, यानी कि मैं भारत के लिए, मेरे लिए भारत। इस चर्चा सत्र के लिए कुछ विशेष सूचनाएं हैं जो हम ध्यान में रखेंगे। आपके ग्रुप में से एक पेपर या एक पीपीटी प्रेजेंट होगी, जिसकी समय मर्यादा ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट रहेगी। अगर आप पीपीटी बना रहे हैं तो मैक्स टू मैक्स उसमें 5 स्लाइड होनी चाहिए। हिंदी, गुजराती या अंग्रेजी किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। यह सभी प्रेजेंटेशन का मूल्यांकन किया जाएगा। आप जो भी पेपर प्रेजेंट कर रहे हैं वह वर्ड फाइल के स्वरूप में होनी चाहिए, जो आपको कल यानी कि 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक दृष्टिकोण के ईमेल आईडी पर मेल करनी है, जिसमें आपके ग्रुप लीडर का नाम तथा उसमें जो भी प्रेजेंट करने वाला है उसका नाम भी मेंशन करना है। यदि प्रेजेंटेशन 12 बजे के बाद मेल किया तो उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो सोचिए, लिखिए और अपने दृष्टिकोण का विचार करें। और एक बात, अगला सेशन फिजिकल फिटनेस और सेल्फ डिफेंस का है, तो तैयार रहिए मार्शल आर्ट्स के लिए। तो मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम। 1 मिनट सभी के लिए। माननीय संध्या बेन टिपरेडी हमारे साथ है। संध्या दीदी, आप ऑडियो वीडियो स्टार्ट करेंगे जरा। ये अखिल भारतीय सेवा प्रमुख है अंजू दीदी, और वो हमारे गुजरात में कर्नावती में ही उनका निवास है। संध्या दीदी, माननीय नीता बहन भी जुड़े थे, वो अभी 5 मिनट पहले उनको कुछ काम की वजह से निकल गए। संध्या दीदी, संध्या बहन, संध्या दीदी नमस्ते। रमेश, ओके, ठीक है। अंजू जी, आप आए, आपका आभार, और हमें बहुत अच्छा लगा आप। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, और हम आशा करेंगे जब भी हम आपको याद करें आप हमसे मिलने जरूर आएंगे। बिल्कुल, जब तक जूम है मजा है। जी दीदी, नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, तो हम लोग आधे घंटे में सब मिलते हैं। चाय वाय हो जाए सबकी तब तक।